जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम पॉलिटी और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 121। देखिए, इसके अलावा जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कर चुके हैं बायोलॉजी। तो अब 5 कंप्लीट प्लेलिस्ट हो गई हैं आपके लिए। दोज आर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस। ठीक है, तो ये 5 कंप्लीट प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे आपको ये 5 प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ एक्सक्यूज़ मी, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगी। आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स जो लास्ट जो भी आया था वो हमने डिस्कस करके रखा हुआ है। जैसे ही नया एडिशन आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के साथ। इफ प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत इज सस्पेंडेड, व्हाट विल बी हैपेंड? क्या होगा? उस केस में क्या होगा, जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को टेम्परेरी। ठीक है, तो सेक्शन 39C ऑफ द छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट 1993 वो बोलता है कि इफ सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत, प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत और जिला पंचायत एज द केस में बी सस्पेंडेड अंडर सबसेक्शन 1, द सेक्रेटरी और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंसर्न पंचायत shall cause to be called a special meeting of the panchayat immediately, but not later than 15 days from the date of the receipt of information from prescribed authority, and the members shall elect from amongst themselves a person to hold the office of sarpanch or president temporarily as the case may be, and such officiating sarpanch or president shall perform all the duties and exercise all the powers of sarpanch or president as the case may be during the period for which such suspension continues। तो जितने पीरियड के लिए वो सस्पेंशन रहेगा उस पीरियड के लिए उनको चुन लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेरिटरी ऑफ क्षेत्र पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, इसको डिटरमाइन कौन करता है? तो इसको डिटरमाइन, जो टेरिटरी है उसको स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243C सब क्लॉज 2, all the seat in the panchayat shall be filled by person chosen by direct election from the territorial constituencies in the panchayat area, and for this purpose each panchayat area shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall, so far as practicable, be the same throughout the panchayat area. ठीक है, next, according to the constitutional provisions, the decision to hold the panchayat election is taken by, it is taken by, again same question ही है, state government. A person can contest the panchayat election if he has attained the age of, तो अगर वो 21 साल का हो गया है या हो गई है, so that person shall be eligible to contest the election of the panchayat. So according to article 243F clause 1, person who has attained the age of 21 shall be qualified to be chosen a member of a panchayat. Next, consider the following statement. The minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25 years. तो देखिए मिनिमम एज जो है वो 21 years है। Next, a panchayat reconstituted after the premature dissolution continues only for the remainder period. ठीक है, so 2 only, ये सही है। Next, the minimum age to be member of a panchayat is 21 years. The statement 1 is not correct. While according to 243E, a panchayat constituted upon the resolution of a panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of a period for which shall be dissolved, for which the dissolved panchayat would have continued. ठीक है, next, what is the qualification to contest the election of municipal council? So for the office of president, age 25 years से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर द ऑफिस ऑफ काउंसलर, एज 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अभी तक तो ये दोनों सही है। थर्ड, हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट, ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। देखते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ अ काउंसलर फ्रॉम 2 वार्ड साइमल्टेनियसली। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 वार्ड से साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड काउंसलर साइमल्टेनियसली, ये सही है, दिस इज ट्रू। प्रेसिडेंट और काउंसलर का जो इलेक्शन है वो साइमल्टेनियसली कंटेस्ट किया जा सकता है। देखिए सेक्शन 34 जो है वो बोलता है कि छत्तीसगढ़ म्यूनसिपैलिटी एक्ट की हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी था, हर क्षेत्र में अपना स्टेट जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस भी कर सकता है।
सो ये बोल रहे हैं कि अ पर्सन हु इज एनरोल्ड इन द म्युनिसिपल इलेक्टोरल रोल एज अ वोटर शैल बी क्वालिफाइड टू बी अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इफ ही इज नॉट लेस देन द एज ऑफ 25 ईयर्स एंड काउंसलर के लिए इफ नॉट लेस देन 21 ईयर्स. नो पर्सन इज अ कैंडिडेट फॉर एनी वन वार्ड शैल बी अ कैंडिडेट फॉर एनी अदर वार्ड. ठीक है. एंड इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसलर बोथ देन एक जगह से उनको रिजाइन करना पड़ेगा विद इन 7 days. Within 7 days. Next, a college student desires to get elected to the municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition among others that his name figures in the voters list. कि उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में आना चाहिए. A person shall be eligible for being elected to the municipal council if his name appears in the electoral rolls of that municipal council. Next, which is not among the power of Panchayati Raj institutions in India? सो जुडिशियल रिव्यू नहीं है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास, जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चला सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज और कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत. तो न्याय पंचायत के लिए हमने पहले भी क्वेश्चन किया है कि इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने 2-tier सिस्टम भी सजेस्ट किया था. ठीक है. नेक्स्ट, न्याय पंचायत इन पंचायती राज सिस्टम हैव नो पावर्स ऑफ अवॉर्डिंग इम्प्रिजनमेंट एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ. तो ये देखिए जो प्रोविजन थे बिहार पंचायती राज एक्ट 1947 के और 1993 विलेज कोर्ट ऑफ न्याय पंचायत हैड द राइट टू इम्प्रिजनमेंट टू पनिश एनीवन. लेकिन 1996 में पटना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया पार्ट 6 ऑफ टू द विलेज कोर्ट ऑफ पंचायती राज एक्ट एज इलीगल, कि नहीं कर सकते हैं. सो प्रेजेंटली एज पर द प्रोविजन ऑफ द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 नो बेंच ऑफ विलेज कोर्ट मे सेंटेंस एनी फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट. तो नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड 2006 के प्रोविजंस में आया था. तो आंसर उस टाइम पर बिहार रहा होगा, लेकिन अब बिकॉज ये प्रोविजन को हटा दिया गया सो बिहार इज़ नॉट द आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ लोकल गवर्नमेंट. सो सेंट्रल कंट्रोल एट्रीब्यूट नहीं है लोकल गवर्नमेंट का. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश. स्टेट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ है आर्टिकल 243 में. Who amongst the following is responsible for revenue distribution between the state government and the local government? Revenue distribution के लिए state finance commission का गठन किया गया. It has been constituted. तो वही define भी करते हैं. Which of the following authorities recommends to the governor about the principles of determination of taxes and fees which may be appropriated by the panchayat of that state? So ये हो जाएगा आपका state finance commission. Next, which of the following constitutional amendments acts accorded constitutional status to the municipalities? So it is Constitution 74th Amendment Act 1992. Right, so Article 243P से 243ZG, it was inserted by 74th Amendment of the Constitution 1992. It gave a constitutional status to the units of local self-governance in urban areas. एक नया schedule भी जोड़ा गया था, that is 12th schedule, which was also added by this amendment. Next, which constitutional amendment provided urban local governments? Again 74th. Which of the statement regarding the 74th amendment of the constitution are correct? ठीक है. 74th amendment की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में बात हो रही है. It provides for the insertion of a new schedule to the constitution. 12th schedule add हुआ था. It restructures the working of municipalities. It provides for the reservation of seats for women in municipalities and it is applicable only to some specified states. तो देखिए इसमें आंसर इन्होंने दिया है A, that is 1, 2, 3 are correct. ठीक है. 74th Amendment Act 1992 की अगर बात करें, सो इट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द म्यूनसिपैलिटीज एंड इट एडेड अ न्यू पार्ट दैट इज पार्ट 9A. ठीक है. कंसिस्ट ऑफ अ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243P to 243ZG. नाउ इन एडिशन टू द एक्ट ऑल्सो हैज एडेड अ न्यू शेड्यूल दैट इज द 12th शेड्यूल एंड 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज. ठीक है. जैसे 29 सब्जेक्ट्स थे पंचायत के पास, वैसे 18 सब्जेक्ट्स थे म्यूनसिपैलिटीज़ के पास. 1 जून 1993 को ही फोर्स में आया था. कॉन्स्टिट्यूशन देता है 3 तरीके का, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. म्यूनसिपैलिटीज़ का 5 साल का टर्म होता है, फिक्स टर्म होता है फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग. नाउ अकॉर्डिंग टू 243T जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं SC/ST के लिए इन एवरी म्यूनसिपैलिटीज एंड द नंबर ऑफ सीट्स वो रिजर्व शेल बी as nearly as the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that municipality as the population of SC in the municipal area or ST in the municipal area bears to the total population of that area.
and such seats may be allocated by rotation to different constituencies in that municipality. एप्लीकेबल है सारे स्टेट्स में, कुछ लिमिटेड में नहीं है. नेक्स्ट, मेयर का टेन्योर कितना होता है? तो मेयर का टेन्योर 5 years का होता है. आर्टिकल 243U, द प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन shall have a tenure of 5 years. The tenure of mayor is 5 years. Under which article of Indian Constitution District Planning Committee (DPC) has been constituted? So DPC का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था ZD के अंदर. ठीक है, ZD 243 ZD. So District Planning Commission committees are intended to consolidate the plan prepared by the panchayats and the municipalities in the district and prepare the draft development plan for the entire district. Next, a person shall be disqualified for being chosen as a member of a municipality at the age of 21 years. Shall not be disqualified. ठीक है, 21 साल के होने पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा. What is correct about the recall of president of municipal council? देखिए 7 पॉइंट्स दिए. छत्तीसगढ़ PCS टिपिकली इस तरह के क्वेश्चन उसने उस टाइम पे बहुत पूछे. So procedure of recall may be initiated with a proposal signed by 3/4 member of the council. The procedure recall may be initiated with a proposal signed by 3/4 of the elected members of the council. True. If the council passed a resolution by majority, collector will take action. President may be recalled by general voters with majority. ठीक है. President may be recalled by general voters with 2/3 majority. The process of recall may be initiated once in his whole term. The process of recall may be initiated twice in its whole term. देखिए सेक्शन 47 ऑफ छत्तीसगढ़ म्यूनसिपैलिटीज एक्ट ये रिकॉल के लिए बात करता है ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल. नाउ इन एवरी प्रेसिडेंट ऑफ अ काउंसिल shall be deemed to have vacated, acted his office if he is recalled through a secret ballot by majority of more than half of the total members of the voters of the municipal area, casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed, provided that no such process of recall shall be initiated. देखिए छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक पेपर है. अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो ये आपको अलग से एक्सप्लिसिटली पढ़ना पड़ेगा. अगर आप नहीं बिलोंग करते हैं तो ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक नहीं देंगे. राइट. तो नेक्स्ट देखते हैं फिर. व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द टेन्योर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल? अगेन देखिए ये टिपिकल छत्तीसगढ़ का तरीका होता है पूछने का. सो द टेन्योर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट. देखिए इलेक्शन रिजल्ट नहीं, पहली जब मीटिंग होती है वहाँ से होता है. अपॉइंटमेंट डेट जो पहली मीटिंग होती है. सेकेंड सही है. द टेन्योर ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग. The tenure of municipal council is 5 years. ये भी ठीक है. If the municipal council is dissolved in 2 years, then new municipal council will be organized for 3 years. ठीक है, बचे हुए टर्म के लिए ऑर्गेनाइज होती है. If municipal council is dissolved in 2 years, then new municipal council will be organized for 5 years. Next, according to Article 243ZJ of the Indian Constitution, maximum number of directors of a cooperative society can be 21. State government has no authority over the local bodies in relation to which of the following matters. So it is in relation to citizens' complaints. Which of the following is not true about local governance in India? क्या सही नहीं है? So there is no separate category of local governance in the federal system of Indian Constitution. Next, arrangement for local governance is made under Article 40, Part 9 and Part 9A. So separate provisions हैं for governance in the Indian Constitution. Which of the following parts of the Constitution is related to municipalities? So it is Part 9A. List को मैच करना है. Local bodies and states according to status of 1999. जिला परिषद at सब डिविजनल लेवल ये होता है असम में. मंडल प्रजा परिषद इट इज़ इन आंध्रा. जनजाति परिषद है मेघालय में. एब्सेंस ऑफ ग्राम पंचायत्स ये है मिजोरम में. नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्टेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर देयर इन DPC?
सो कितने हो जाएंगे इलेक्टेड एंड एक्स ऑफिशियो? सो इलेक्टेड होते हैं 20 और एक्स ऑफिशियो होते हैं 5. अदर नॉमिनेटेड कौन कौन से होंगे? कलेक्टर होंगे, ADM एंड 2 नॉमिनेशंस फ्रॉम MLA, MP एंड CSO. Now this number may be different in different states. For example, there are 34 members in Bihar, 20 members in Chhattisgarh, and ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा गया था. सो करेक्ट आंसर इज C, 20 and 5. नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ रूरल मैटर्स इज नाउ डिक्रीज्ड एट लोकल लेवल. रीज़न ये है कि द रूरल लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैव बीन रिजुविनेटेड बाय द 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखिए दोनों ही सही है एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द असर्शन. Next and the last question for today. Consider the following statements and select the correct answer using the codes given below. Assertion says that the Union Finance Commission does not have any role in considering measures for providing the financial assistance to local bodies. तो देखिए ऐसा नहीं है, does not have any role, ये गलत है. In spite of 73rd, 74th constitutional amendments, the local government continues to be a state subject in the 7th schedule of the constitution. This is true. ये बात सही, ठीक है. सो फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया आर्टिकल 280 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है? रिकमेंडेशन इन रिगार्ड्स टू द मेजर्स नीडेड टू augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats and the municipalities in the state on the basis of recommendations made by the state finance commission. ठीक है. So this is all for now. लास्ट हमारा एक वीडियो बचेगा इस चैप्टर का, वो हम कंप्लीट करेंगे कल. और देखिए टुमारो इज़ द एग्ज़ाम फॉर UPSC CSE एग्ज़ाम है कल. जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक. आप अच्छे से करके आइए. बी काम, बी रिलैक्स्ड. आज आराम से सोना है, ऑलराइट. और सुबह जल्दी उठिए. अपने जितने भी एसेंशियल्स हैं आई होप आप सब लोगों ने अभी उसको प्रिपेयर करके रखा होगा, ऑलराइट. तो किसी भी तरीके का पैनिक नहीं करना है. आराम से एक राउंड ऑफ एग्ज़ाम देना है आपको 1 घंटे में. अराउंड आप 60 to 70 मिनट्स आप ले लीजिए. 1 घंटे में आराम से आप एक राउंड दीजिए. जो आपको आ रहा है बेहतरी से उसके पहले कीजिए. सेकेंड राउंड, सेकेंड रीडिंग जो होनी चाहिए उसमें जो आपने कुछ गेसेस हम लगा के छोड़ देते हैं कि ये 2 में हम कन्फ्यूजन होते हैं, वहाँ पे उसको क्लियर कीजिए. और थर्ड राउंड में आपको जहाँ लग रहा है कि नहीं अब मेरा अगर सैचुरेशन लेवल है, मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए जितने भी आप सोच के जा रहे हो, क्योंकि अब इस टाइम पे किसी भी तरीके का नया ज्ञान नहीं. बस इतना देख लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपने जितने लेवल ऑफ क्वेश्चन किए हैं, अब आपको अगर कोई नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम लग रहे हैं तो आप रिस्क लीजिए. अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है तो फिर रिस्क मत लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में फिर जाने की संभावनाएं हो जाती हैं. ठीक है. सो ट्राई टू अटेम्प्ट एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बीइंग इन अ नेगेटिव जोन, क्योंकि नेगेटिव में बहुत ज़्यादा मार्क्स कट हो जाते हैं और तब जो रिज़ल्ट आता है वो फिर बहुत ज़्यादा हार्डनिंग होता है. ठीक है. सो इन दैट केस कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक सभी को. अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ध्यान रखिए अपना. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.